Hi guys, this is Declan Latham, Head of Sports Science for Pro Athlete Supplements. And today we are going to talk about a very interesting topic, which is one of the principles of sports science called progressive overload. So progressive overload जो होता है, basically as the name suggests, it is about overload and it is about progress. So overload क्यों ज़रूरी है? Obviously overload इसलिए ज़रूरी है that when we want to get fitter, you need to overload the body so that the body gets used to newer stresses and then it starts coping with it. So एक example अगर मैं यहाँ पर दूँ तो it is like somebody who does say walking. कोई है जो daily 4 kilometers walk करता है, okay? और ये इंसान अब चाहता है कि मैं और fit बनूँ, तो how will they overload? एक तो distance बढ़ा देंगे, they can do maybe 5 kilometers, और हो सकता है कि they can do jogging, और हो सकता है कि they might wear external resistance like a weighted vest or carry some light dumbbells. I mean there are various different ways of overloading. So overloading अगर aerobic fitness के लिए करें तो this is one way. और कोई है जो अगर एक gym जाकर lifts weights और is doing say maybe 5 kilo dumbbell curls for their biceps, और अब चाहता है कि that person gets stronger to be able to lift more. So obviously to get stronger the person will lift more and try to lift 6 kilos instead of 5. And maybe the other way is to lift the same weight but do it slower. So there are various different ways to increase your overload to become fitter. तो ये तो हम लोग क्लियर हो गए कि to become fitter you need to overload the body. बट यहाँ पर हम लोग ये बात भूल जाते हैं बहुत सारे कि the first word is progressive. So progressive का मतलब क्या है? Progressive means slow and gradual. तो ये सबसे बड़ी गलती जो होती है with top athletes, top level के जो star players है उनसे भी ये गलती होती है, regular people as well, और बहुत सारे trainers से भी. और ये गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि to get fitter I need to push. So daily जाते हैं जिम में, daily push करते हैं, कोई heavy weights उठाता है, कोई cardio बहुत ज़ोर से करता है, and then they just get so tired. So they think कि okay this is the way to get fit. पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी है कि when you do overtraining, okay, जो ये overload है अगर ये बहुत ज़्यादा हो गया, something that your body can't cope, then that is where you get injuries as well, okay? और एक बार injuries आ गए then it takes a long time, you will stop enjoying the process of getting fit. So ये progressive overload में ये जानना बहुत ज़रूरी है कि you should add load progressively and gradually. तो इसका अगर मैं एक simple example दूँ तो कोई पेरेंट्स जैसे होते हैं सोचते हैं कि मेरा बेटा बड़ा बनकर डॉक्टर बनेगा, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि स्कूल जाने के बाद डायरेक्टली उसे स्कूल से स्ट्रेट मेडिकल कॉलेज लेके जाते हैं. ऑब्वियसली नॉट. पहले द पर्सन गोज टू स्कूल, देन दे गो टू कॉलेज, वहाँ पर दे टेक क्लासेस, देन दे विल अपीयर फॉर एग्जाम्स एंड देन दे गेट इनटू मेडिकल स्कूल. एंड देन उस दैट पर्सन अगर वो पर्सन चाहता है कि आई वांट टू बी अ स्पेशलिस्ट एज एन ऑर्थोपेडिक सर्जन और एज अ कार्डियक सर्जन, देन द पर्सन हैज़ टू gradually study for that as well, right? So that is the same thing which happens with exercise as well. हम लोग जब hard exercise करते हैं, when we push ourselves, तब ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि exercise के लिए you should earn the right to train hard. ऐसा नहीं है कि बस जाना है and I train hard and that's how I become fitter. और ये इसलिए ज़रूरी है ताकि आप injuries ना हो आपको, second आपका interest भी रहे बहुत टाइम तक. क्योंकि ये कॉमनली देखा जाता है कि बहुत सारे लोग इतने जोश में आकर ट्रेनिंग कर देते हैं कि 2 महीने के लिए जिम ज्वाइन कर लिया या दे स्टार्टेड न्यू प्रोग्राम एंड देन एक बार छोड़ दिया तो दैट्स ओवर. एंड देन एवरीबडी टॉक्स अबाउट हाउ दे यूज्ड टू बी फिट एट वन टाइम बट नोबडी टॉक्स अबाउट हाउ फिट दे आर नाउ. सो इसकी वजह से ये ज़रूरी है कि व्हेन यू ट्रेन यू मेक श्योर दैट यू हैव अ ग्रेजुअल प्रोग्रेशन, ताकि आप एक एग्जाम्पल अगर दूँ तो आप आपका पूरा खाना एक ही दिन में ना खा लें, ओके? You have to save it for later. So आप जब slowly train करते हैं तब आपके body को chance मिलता है to gradually get adapted to that overload. तो यहाँ पर याद रखना है एक principle which is in the progressive overload के zone में आता है, and these 4 letters याद रखने हैं, F, I, T and T. So F is frequency, okay? I is intensity, T is time, and the next T that comes in is time. So what does the fit words mean? So it means कि आप जब अपने आप को चाहते हैं कि लोड बढ़ाए, okay, that you train harder, तो आप
फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, ओके, दैट इज फ्रीक्वेंसी मीन्स अगर आप 3 बार अगर हफ्ते में ट्रेनिंग करते हैं तो यू मेक इट 4 times, ओके, और यू मेक इट 5 times, सो ऑब्वियसली नाउ इट्स बिकम हार्डर। फिर फ्रीक्वेंसी के बाद जो दूसरा वर्ड आता है दैट इज इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी जो है इज बेसिकली कि आप एक्सरसाइज करते हैं तो कितने हार्ड एक्सरसाइज करते हैं। तो हार्ड में दे आर वेरियस डिफरेंट वेज, ओके, और इनमें आता है एक कि आप वेट बढ़ा सकते हैं, आप उस एक्सरसाइज को ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं, बाय विच ऑल्सो यू कैन मेक इट हार्डर। फिर उसके अलावा आप अगर जिम में सपोज लिफ्टिंग करते हैं तो यू कैन फोकस ऑन डिफरेंट कॉन्ट्रैक्शंस, जैसे इसेंट्रिक हो गया, स्लोली लोअरिंग द वेट डाउन, आप रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं, 10 कर देते तो आपको 15 करें तो उससे हार्ड हो गया, या आप सेट्स बढ़ा सकते हैं, अगर आप 10 के 3 सेट करते थे तो आप अब 10 के 5 सेट कर रहे हैं। सो दीज आर द वेज इंटेंसिटी कैन बी इंक्रीज्ड इन वेट ट्रेनिंग। कार्डियोवैस्कुलर जो एक्सरसाइजेज है उनमें आप अगर वेट आपका इंटेंसिटी बढ़ाना चाहे तो देन इट विल बी लाइक आपका स्पीड बढ़ा दिया आपने, जैसे अगर ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, आपका इंक्लिनेशन बढ़ा दिया तो देन अगेन इट बिकम्स हार्ड। फिर हो सकता है कि आप अगर सेट्स कर रहे हैं जैसे और यू डू इंटरवल्स, यू डू से 2 minutes ऑफ रनिंग एंड देन यू डू 2 minutes ऑफ वॉकिंग, तो उसमें आपने जो ईजी पार्ट है आपका जो वॉकिंग है और आपका जो रिकवरी पीरियड था उसको आपने शॉर्ट कर दिया। सो 2 minutes ऑफ रनिंग इंस्टेड ऑफ 2 minutes ऑफ नाउ वॉकिंग यू मेक इट 1 minute ऑफ वॉकिंग, तो आपको रेस्ट करने के लिए कम टाइम मिलता है। सो दीज आर द वेरियस वेज बाय विच यू कैन इंक्रीज इंटेंसिटी। फिर होता है टाइम। टाइम इज बेसिकली कि आप कितना टाइम कर रहे हैं। सो अगर कोई है जो 20 मिनट वॉकिंग कर रहा था या रनिंग, सो नाउ द पर्सन डिसाइड्स टू डू 30 minutes, सो ऑब्वियसली टाइम से भी इंटेंसिटी और द होल लोडिंग इज इंक्रीज। और फिर होता है टाइप। सो टाइप इज कौन से टाइप की एक्सरसाइज है। सो जैसे कोई है अगर अपने कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस के लिए साइकिलिंग बैठ के आराम से कर रहे थे एंड ग्रेजुअली नाउ दे वांट टू बिकम सॉर्ट ऑफ पुट मोर लोड, ओवरलोड कर और फिट हो जाए। सो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, दे कैन नाउ एंड अप एडिंग maybe skipping, which is much harder than cycling, or they can start doing some bag work, heavy bag पर boxing practice करें तो जो उसमें impact भी रहेगा, so they can start that. So इस तरीके से the type of exercise is changed. But इसमें ये जानना ज़रूरी है कि when you train, you keep these principles in mind and आपका जो increment है वो slowly करें, especially in these times of COVID. बिकॉज अब क्या है कि हम लोग बहुत टाइम के बाद ट्रेनिंग कर रहे हैं, बहुत गैप था ट्रेनिंग में और जिम्स अभी खुले हैं तो पीपल आर स्लोली गेटिंग इनटू फिटनेस। तो आपको इतना भी नहीं करना है कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाए, ओके, और आपको कम भी नहीं करना है सो दैट यू डोंट इम्प्रूव। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ये बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और काफ़ी ट्रेनर्स भी आई वुड ब्लेम देम फॉर दिस, कि मतलब फुल टाइम जब कोई किसी को ट्रेन कराए तो बस पुश करते हैं। और कभी कभी आई इवन जोक अबाउट दिस, कि अगर किसी को ट्रेनर बनना है या किसी को कोच करना है तो जनरली सिर्फ 3 वर्ड्स ही यूज़ करते हैं लोग, विच इज़ कम ऑन 2 more। सो ये जो कम ऑन 2 more का एक कॉन्सेप्ट है इंसान थक गया और उससे अगर वेट्स नहीं जा रहे हैं और पुशअप्स नहीं जा रहे हैं और समबडी हु कांट रन तो उसको बोले कम ऑन 2 more minutes और बस पुश करे। सो ओवरलोड जब हम लोग सिर्फ इसी तरीके से करें कि बस पुश ही करना है, इट इज़ नॉट द वे, ओके। एक्सरसाइज इज लाइक ड्राइविंग अ कार, ओके। आपकी बॉडी को एफिशिएंटली जो है हमको सिखाना है कि कैसे उस बॉडी को स्लोली जब ज़रूरत है तब गियर्स चेंज करें, ओके, और जब ज़रूरत है तब ब्रेक्स भी लगाएं। ऐसा तो नहीं है कि कार में बैठ के सिर्फ एक्सेलरेटर दबाकर पूरा टाइम चलाते हैं, राइट। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और ये जो वर्ड्स मैंने कहे हैं FITT, ये याद रखना है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम एंड टाइप। सो आप जब भी अब कोई आपके ट्रेनिंग में से चाहते हैं कि मैं अपनी जो ट्रेनिंग है उसको हार्ड करूं, आई ओवरलोड इट, सो कैसे करें, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि एक ही पैरामीटर एट अ टाइम इंक्रीज करना है। मीनिंग व्हाट? सो लेट्स अज्यूम आई गिव यू एन एग्जांपल ऑफ वेट ट्रेनिंग, जहाँ पे बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है। तो एक इंसान है जो आज 5 किलो लेकर बाइसेप कर्ल्स कर रहा है और साइड लैटरल्स और व्हाटएवर एक्सरसाइज, ओके, और चाहता है कि अब मैं इसको इम्प्रूव कर लूँ और आई गेट स्ट्रॉन्गर। तो
उस इंसान को आपको जब अभी ट्राई करना है कि स्ट्रांग होना है तो एक ही पैरामीटर यानी आइदर उसके रेपिटेशंस बढ़ाएं। तो अगर 5 किलोज के द पर्सन वाज डूइंग 10, सो आप उसको 15 रेपिटेशंस करें, बाकी कुछ ना चेंज करें। उसका जो रेस्ट पीरियड था वही रखें, उसके जो सेट्स थे वही रखें, उसकी जो एक्सरसाइज है वो वही रखें। ओके, सो बाकी सब कुछ चेंज ना करें। ओके, गलती कहाँ होती है कि लोग रेपिटेशंस बढ़ा देते हैं। एक दिन सोचते कि ओके मैं आज और तेज़ एक्सरसाइज करूँगा तो 10 की रेपिटेशंस की जगह पर यू एंड अप डूइंग 15। फिर उसमें क्या करते हैं, वेट भी बढ़ा लेते हैं, सोचते हैं कि 5 की जगह पर मैं आज 7 किलो लेकर करूँगा। फिर उसके बाद सेट्स भी बढ़ा लिए, 3 की जगह पर 5 कर दिए, फिर रेस्ट पीरियड भी कम कर लिया। सो दिस इज वेयर यू आर बॉम्बार्डिंग द सिस्टम फ्रॉम ऑल डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एट अ टाइम एक ही बढ़ाना है। आप अगर 10 रेपिटेशंस कर रहे थे तो 10 के जगह पर आप 15 करिए। एक बार आपने उसको मास्टर कर लिया, मे बी ओवर पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और सॉरी अ पीरियड ऑफ 2 or 3 वीक्स, देन यू स्टार्ट एडिंग अनदर पैरामीटर, मीनिंग अब वेट भी बढ़ाना है। फिर वो जब इजी हो जाता है तब यू ऑल्सो स्टार्ट रिड्यूसिंग द रेस्ट पीरियड। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हर कोई गलती करता है, नो, एंड अ लॉट ऑफ कोचेज, अ लॉट ऑफ एथलीट्स, अ लॉट ऑफ जनरल पॉपुलेशन की एक्सरसाइज की जो इंक्रीमेंट्स हैं बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कार्डियो कर रहे हैं तो कार्डियो में जैसे सपोज there's somebody who does walking on the treadmill, okay, or even walking outside, तो एक इंसान है जो there's a lady let's say who has been doing 4 kilometers of walking, और अब the lady is thinking okay let me make it harder, let me make it tougher. So 4 kilometers के जगह पर she can now try maybe 4.5, okay, and that's it. Don't make it 4.5 and then increase the gradient, okay. And then when you sort of, if you are doing breaks where you are doing 2 minutes of fast and then 1 minute of slow, don't make everything into a hodgepodge, okay. लोग क्या करते हैं कि हर चीज़ बढ़ा देते हैं, frequency, intensity में different things, okay, and then the time as well and the type as well. So when you increase one parameter, that will keep you safe as well, and it will allow you to enjoy exercise for longer. You will be able to also exercise without injuries, okay. So this is the aim of exercise mein ultimately when you finish and when you go home you should be feeling fresher, okay. When you wake up the next day you should have more energy, okay, and that is the whole idea of progressive overload. हम लोग जैसे एक पेड़ होता है या एक पौधा होता है तो उसको हम लोग जब पानी डालते हैं so we obviously उसको एक ही दिन में तो पूरा ट्रक भरकर पानी नहीं डालते हैं, right. We will add a little water, allow it to grow, and then as it grows we add a little water. That's how it improves, ऐसा तो नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ करके उसको 2 दिन में बढ़ा दे। सो एक्सरसाइज में टाइम लगता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, एंड पीपल शुड रियलाइज कि एक्सरसाइज कैन मेक योर बॉडी एंड एक्सरसाइज कैन ऑल्सो ब्रेक योर बॉडी। तो हम लोग कितने बार देखते हैं कि लोग इंजरीज से आते हैं और सफ़र करते हैं और सोचते हैं कि यार मैंने बहुत एक्सरसाइज की और एक्सरसाइज की वजह से मेरी बैक खराब हुई है, एंड ऑफ कोर्स दैट हैपेंस, बट इट इज़ नॉट बिकॉज एक्सरसाइज इज बैड, बिकॉज यू अप्रोच्ड एक्सरसाइज बैड। अगर आप ये जाकर सोचे कि बस मैं हर दिन मेहनत करूँगा, पुश करूँगा, I won't give up, then you are asking for injuries. Like I said, exercise is like driving a car, okay. You need to know when to push, when to apply brakes, when to change gears, okay, and then have a nice steady pattern so that you enjoy exercise in the long term. So ये याद रखना, FITT, frequency, intensity, time and type, okay, and enjoy the whole workout in that manner and make it a successful program during all this COVID times. Okay, stay safe and stay sensible. Thank you.